Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for Class 8, Chapter 14 Chemical Effect of Electric Current. Dear students, your elder might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electric appliance with wet hands? Students, इस चैप्टर में हम केमिकल इफ़ेक्ट के इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। गीले हाथों से वेट हैंड से हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए, इसका रीज़न हम देखेंगे। We have learned earlier that the material which allowed electric current to pass through them are good conductor of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. Means student, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, सो वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ जो है मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, सो वे बैड कंडक्टर, सो दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर. We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. Students, aluminium, copper गुड कंडक्टर है, रबर, प्लास्टिक और वुड जो है बैड कंडक्टर है. However, so far we have used our tester to test materials which are in solid state, but what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. Students, हमने डिस्कस किया कुछ सॉलिड्स के बारे में जो इलेक्ट्रिक पास होने देते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट लिक्विड्स. क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं? सो वी डिस्कस अबाउट द डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज सेम टेस्टर. However, replace the cell by a battery also. Before using the tester, we should check whether it is working or not. Okay, now that our tester is working, let us use the test various liquids. अलग अलग लिक्विड में हम इलेक्ट्रिसिटी की पास को हम चेक करते हैं. When the liquid between two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. The current flow in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow to electric current to pass the circuit of the tester, it is not complete and the bulb does not glow. Students, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह पास हो जाती है, कंप्लीट सर्किट फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो बल्ब है ग्लो हो जाता है. बट कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होता बिकॉज ऑफ सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, सो दे आर बैड कंडक्टर्स हम कह सकते हैं. नाउ इन सम सिचुएशन एवन थ्रू द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो. इट मे हैपन इन एक्टिविटी 14.2. What can be the reason? Do you remember why the bulb glow when the electric current pass through it? Due to heating effect of current, the filament of bulb gets heated to a high temperature and it start glowing. However, it is current through a circuit is too weak. The filament does not get heated sufficiently and it does not glow. And why is the current in the circuit weak? So students, इस पैराग्राफ में ये क्लियर दिखा रहे हैं दैट जो है हीटिंग इफ़ेक्ट होता है किसी भी सर्किट से. जब इलेक्ट्रिक पास होती है तो वो सर्किट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. ओके, सो और कुछ जो कंडक्टर होते हैं वो वीक कंडक्टर होते हैं, सो जो बल्ब है वो कम्प्लीटली ग्लो नहीं होता है. वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक? किस कारण से सर्किट वीक होने से भी बल्ब जो है वो प्रॉपरली ग्लो नहीं हुआ था? वेल, थ्रू अ मटीरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट, इट इज़ एन ईजी एन अ मेटल.
In a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect a weak current? So students, कुछ सर्किट में ऐसा होता है वीक करंट फ्लो होता है जिससे बल्ब जो है प्रॉपर ग्लो नहीं होता है, और कुछ सर्किट में कुछ सर्किट में स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होता है जिससे बल्ब जो है वो ग्लो होता है. वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक current to make another kind of tester. Do you recall that electric current produces magnetic effect? What happened to a compass needle kept nearby when current flow in a wire? Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using the magnetic effect of current? So student, यहाँ एक और इफेक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. मीन्स स्टूडेंट्स, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक फ्लो होती है तो उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है. कुछ टाइम के लिए होता है जब तक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Okay, now we discuss about a very LED. You may use an LED in place of electric bulb in the tester. LED glow even when a weak electric current flow through it. So LED एक important appliance है जिसमें वीक करंट के से भी ये ग्लो हो जाता है. There are two wires called lead attached an LED. One lead is slightly longer than the other. Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to positive terminal. So student, LED में दो टर्मिनल होते हैं. एक टर्मिनल थोड़ा लॉन्ग होता है, उसे पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं. सेकेंड टर्मिनल जो थोड़ा शॉर्ट होता है, इसे नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अटैच करते हैं. ये वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है. ओके, वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स. तो स्टूडेंट, कुछ जो लिक्विड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और कुछ जो है कंडक्टर, कुछ जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. ओके, एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट. दैट्स व्हाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर एंड बैड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाई एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, कुछ जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं जो अपने इलेक्ट्रिक को पास करते हैं, और कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं. ओके, वी हैव टेस्टेड द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ टैप वाटर. हम एक टैप वाटर के साथ इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं कि टैप वाटर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है या नहीं. इट इज़ अ गुड कंडक्टर और अ बैड पुअर कंडक्टर हो. सो हम इसमें डिस्कस करते हैं. लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर. अब हम एक डिस्टिल वाटर के साथ इस टेस्ट को रिकॉल करते हैं. क्या डिस्टिल वाटर भी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है? ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है? सो when salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. So students, नॉर्मल कंडीशन में डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं करेगा, बट टैप वाटर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेगा. इसी टाइप से डिस्टिल्ड वाटर में अगर सॉल्ट ऐड कर दिया जाए तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा. दैट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा. जब हम इसे सर्किट में ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा. ओके, द वाटर दैट वी गेट द सोर्स सच एज टैप वाटर, हैंड पम्प्स, वेल्स, पॉन्ड्स इज़ नॉट प्योर. इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट. इनमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिसके रीज़न से ये इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. Small amount of mineral salts are naturally present in it. The water is thus a good conductor of electricity. ऐसा वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है.
ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट्स, डिस्टिल वाटर जो है वो सॉल्ट से फ्री है, सो ये पुअर कंडक्टर है। When we found that common salt when dissolved in distilled water make its good conductor, अगर distilled water में थोड़ा salt ऐड करें तो वो good conductor हो जाएगा। What are the other substance which we dissolve in distilled water make it conducting, हम और कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे ये गुड कंडक्टर हो जाए। सो वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन, डू नॉट activity under the supervision of your teacher, parents or some elder person because the use of acid is involved in it। so acid के एडिशन से भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। सो ये जो आपकी एक्टिविटी होती है इसे आपको सीनियर पर्सन के अंडर में आपको करना होता है बिकॉज एसिड जो है वो हार्मफुल है। ओके, now most liquids that conduct electricity and solution of acid base and salts, तो जो सॉल्यूशन होते हैं जो एसिड बेस और सॉल्ट से बने होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को होने देते हैं। When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect of solution? Okay, chemical effect of electric current, एक नया इफेक्ट जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, किस टाइप से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो केमिकली इफेक्ट होता है। इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट, क्या हम इस इफेक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस होते हैं, कौन कौन से केमिकल इफेक्ट आते हैं। ओके, सो ये एक एक्टिविटी है। टेक आउट कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम 2 discarded cells, clean their metal caps and sand papers, warp copper wires around the metal cap of the carbon rod and join them a battery, we call these 2 electrodes। यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड बनाए गए उसके बारे में डिस्कस है। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शंस, उसमें काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन होती है। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस मे बी फॉर्म, इस कोई भी सॉल्यूशन से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो सकती है जिससे कोई बबल्स जो है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, बबल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन, इलेक्ट्रोड्स पे मेटल का डिपोजिशन हो सकता है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स, तो ये जो रिएक्शंस होती है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सॉल्यूशन पे और इलेक्ट्रोड्स पे। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट, तो ये अभी हमने देखा केमिकल इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, नाउ वी डिस्कस अबाउट अ वेरी गुड टॉपिक, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने देखा होगा अलग अलग जगह जो आपकी ज्वेलरी होती है उसके ऊपर दूसरे मेटल की ऑर्डिनरी या कुछ इस टाइप की आप उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं, शाइनी उसको बना देते हैं अदर मेटल के डिपोजिशन से। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम डिस्कस करते हैं। यू नो डैट अ ब्रांड्स न्यू बाइसाइकिल हैज़ शाइनी हैंड लेबर एंड व्हील रिम्स, हाउएवर इफ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द शाइनी कोटेड कम्स ऑफ revealing a not a shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold, आपको लगता है जो गोल्ड से बना होता है लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, अदर मेटल है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड की गई है जिससे वो गोल्ड शाइन दे रहा है। ओके, सो
which are appear to be made of gold. However, we repeated use the gold coated wares of revolving silver, some other metal blend. Okay, in both the case a metal has a coating of another metal. किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोट होना इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. Do you wonder how a layer of a metal can be deposited on the top of another? Well, let us try doing ourselves. तो इस टाइप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जिसमें एक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को अरेंज किया जाता है जिससे वो शाइनी हो जाती है अलग अलग यूजेस के लिए. When electric currents is passing through the copper sulfate solution, copper sulfate dissolve into copper and sulfate. The free copper gets down to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. But what about the loss of copper from the solution? From the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus is loss of copper from the solution in roasted and the process continue. This means the copper gets transfer from an electrode to another. Means स्टूडेंट इसी टाइप से एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मेटल का डिसोल्यूशन होता है मेटल उसके ऊपर आकर ऐड होती है. इस प्रोसेस में ये बताया गया ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल है. आपने देखा होगा जो ज्वेलरी होती है उसमें भी गोल्ड की प्लेटिंग हो जाती है जिससे वो गोल्ड जैसी शाइनी हो जाती है, सिल्वर की जैसी उसमें शाइन आने लग जाती है. ये आपको कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऑब्जेक्ट्स आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहे हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. वेरी गुड डेफिनेशन ये आपको है. वापस से देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ layer of any desired metal on the another metal by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common application of chemical effect of electric current. तो ये chemical effect of electric current का good example है. Electroplating is very useful process. It is widely used in industries for coating metal object with an thin layer of different metal. एक different metal की thin layer उस पर हो जाती है, plated हो जाती है. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects. बहुत सारे objects पे chromium की plating हो जाती है जिससे वो shiny हो जाते हैं. On many objects such as car parts, bathtubs, kitchen glass, burner, bicycle handbars, wheel rims, many objects जिससे वो shiny हो जाती है. Chromium has a shiny appearance. It does not corrode. It resists scratches. Okay. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of the chromium. यानी सारा ऑब्जेक्ट जो है क्रोमियम से बनाना इकोनॉमिकली बहुत लॉस का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा. सो हम क्या करते हैं उसकी क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे जिससे शाइनी अपीयरेंस हमें हो जाता है. So the object is made from cheaper metal and only coated of chromium. Over it is deposited jewelry makes electroplate silver and gold on less expensive metal. Less expensive metal के ऊपर हम गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं तो वो ऑर्नामेंट्स जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर जैसे शाइन के हो जाते हैं. दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर एंड और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव. क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव मेटल से बने हैं हमने उसके ऊपर गोल्ड सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है. सो वे इकोनॉमिकली गुड हैं. टिन केन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन onto iron. Tin is less reactive than iron. tin जो है वो आयरन से less reactive है. Thus food does not come into contact with iron is protected from getting spoiled. Iron is used in bridges and automobile to provide strength. However, iron tends to
corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. So student, जो आयरन होता है उसके ऊपर आपको पता है जंग लग जाती है, कोरोशन हो जाता है. सो उस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की डिपोजिशन, जिंक की लेयर अप्लाई कर देते हैं, जिससे वो कोरोशन जंग से बच जाती है, रस्ट से बच जाती है, ख़राब होने से बच जाती है. In the electroplating factors, the disposal of the used conducting solution is major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guideline to protect environment. So students, ये जो electroplating की जो फैक्ट्रीज के जो डिस्पोजल्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, इन्हें क्या होता है स्पेसिफिक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनका आगे का प्रोसेस होता है. इनको डिस्पोज करने के लिए गाइडलाइन है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. सो स्टूडेंट, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा. थैंक यू.